Good morning, students. Myself, Pankaj Mishra. Today we are going to study class 10 physics, and our chapter is magnetic effect of electric current. Student, before starting of this chapter, in previous chapter you have studied the chemical effect of electric current. That means how the process of electrolysis takes place. Okay. Then heating effect of electric current in the chapter of electricity, how heat is generated from the electricity. Now in the same pattern, in this chapter we have to study about the magnetic effect of the electric current. That means how to generate electricity from the magnet and how to produce magnetism from the electricity. Okay. The chapter starts from the concept of magnet. So we will study the term magnet. How can we define the term magnet? So we can say magnet is a kind of device or substances which have ability to attract iron, nickel, cobalt, chromium, etc. towards it. मैग्नेट वो डिवाइस है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम इन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके. नाउ how the word magnet originated. In fact, in Asia there is country Turkey where is a town Magnesia. What is the name of the town? Magnesia, where a material was found which have ability to attract these particles, iron, nickel, chromium, cobalt. Okay, so that material was named on the name of magnesia and the name was given magnetite. Okay, it was the oxide of iron. तो आयरन का क्या था? ऑक्साइड था, और उसमें क्या एबिलिटी थी? वो किसको अट्रैक्ट कर रहा था? आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता था. सो वो मैग्नेटाइट वर्ड से क्या बन गया? मैग्नेट बन गया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेट. इट इज ऑक्साइड ऑफ magnetic oxide of iron. It is a combination of FeO and Fe2O3. Okay, students. So this FeO and Fe2O3 combinedly called Fe3O4. What do we call it? Fe3O4, and this Fe3O4 is magnetic ore of iron. This is called magnetite. And from this magnetite, magnet word was originated. Clear to all of you? बढ़ते हैं इसमें आगे. अब इस चैप्टर में जो आपको मैग्नेट को स्टडी करना है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू देयर शेप. वी कैन कंसीडर बार मैग्नेट व्हिच इज bar in shape, rectangular in shape, cylindrical magnet. Okay, then circular magnet, horseshoe magnet. Horseshoe magnet is U-shaped magnet. This is also called horseshoe magnet. ठीक है. Then there is magnetic needle. Okay, तो उससे पहले हम देखते हैं what is bar magnet. Let's understand bar magnet. Bar magnet is a rectangular or cylindrical device. Rectangular or cylindrical shaped magnetic device having two poles, north pole and south pole. Okay, like this or this. It may be cylindrical or it may be rectangular in shape. Second one is magnetic needle. एक को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. Magnetic needle is a rhombus shaped device. Okay, like this rhombus, you all know. Now it is painted north and south. Okay, the north end is painted here. We can place this rhombus shaped device, that is magnetic needle, on a particular stand. Okay, like this, north pole and south pole. And the third device that's very important, this is the magnetic compass. What is the third device? Magnetic compass. बच्चों magnetic compass क्या है? Magnetic compass जो है, this is basically a magnetic needle placed in brass or aluminium box having glass top. जो brass या aluminium box में magnetic needle को हम place करते हैं, ठीक है, जिसमें glass का top लगा हुआ रहता है, this is called our magnetic compass. Like this. Okay.
एंड मैग्नेटिक नीडल अंदर की तरफ प्लेस किया जाएगा, है ना। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय एरो। नॉर्थ पोल को किससे इंडिकेट करेंगे? एरो से उसका इंडिकेशन किया जाएगा। तो ये तो कुछ डिवाइसेस हैं which by help of these devices we are able to detect the magnetic field। हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट के पोल्स को डिस्कस करते हैं, है ना, और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चों बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स। ओके, सो बार मैग्नेट में हम कंसीडर करें या एनी काइंड ऑफ मैग्नेट, देयर इज टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, वन इज कंसीडर्ड नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज कंसीडर्ड एज साउथ पोल। So we can say there are two kind of poles of magnet. What was that? North pole and south pole. North and south. Now it's very important how to find out which one is north pole and which one is south pole. कौन सा पोल नॉर्थ पोल और कौन सा पोल साउथ पोल है। So for this purpose we will suspend the freely magnet. Okay, we will suspend the bar magnet. bar magnet को हम क्या करेंगे? freely suspend करेंगे। Okay, so that end which lie on north side। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैग्नेट को जब भी आप धागे से बांध के, थ्रेड से बांध के फ्रीली सस्पेंड करेंगे, वो हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ का ही इंडिकेशन देगा। ओके, सो व्हिच एंड लाइज ऑन नॉर्थ साइड, ओके, दैट इज नॉर्थ पोल, व्हिच लाइज ऑन साइड साउथ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ ही इंडिकेशन करेगा। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक पोल दैट लाइक पोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म लाइक? लाइक दैट मींस सिमिलर। Like pole repel each other. Like pole always repel each other, है ना। Between north and north or south to south, always repulsion is there. North pole with north pole repulsion हो जाएगा, north pole and I mean south pole and south pole ये भी repulsion हो जाएगा। Similarly, unlike pole means जो opposite poles है, okay, attracts each other। Unlike poles attracts each other, that means north and south। अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के टच में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल के टच में आएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देन मेन प्रॉपर्टीज ऑफ टू प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, या एक ही प्रॉपर्टी समझ लें कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि व्हाई मैग्नेट ऑलवेज शो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, है ना, वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही क्यों इंडिकेट करेगा। सो वी कैन से आवर अर्थ इज आल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट that means formation of magnetism by electricity. So we can say our earth is a kind of an electromagnet, and अगर अर्थ मैग्नेट है तो अर्थ में भी क्या होंगे? मैग्नेटिक पोल्स होंगे। ओके, अर्थ का भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक पोल हो जाएगा। यहाँ पर हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन। सो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो साउथ पोल है वो नेचर की कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। सो दिस इज साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन जो साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई अर्थ का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ का नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई मैग्नेट हमेशा फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ ही हमको इंडिकेट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Our next concept is magnetic field. Let's try to understand what is the concept of magnetic field. The term magnetic field, समझिए क्या है magnetic field? We can say the space around the magnet or the area around the magnet where magnetic force is exerted, this is called magnetic field। ठीक है, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पे क्या एक्सर्ट हो रहा है?
मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेस के आसपास, सॉरी मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बात करी कि मैग्नेट हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट, मैग्नेट हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन, ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप आयरन को मैग्नेट से स्टिक करेंगे तभी वो स्टिक होगा, या अगर आपने आयरन को मैग्नेट से थोड़े डिस्टेंस पर रख दिया है तो भी वो उसको स्टिक कर लेगा? सो डेफिनेटली इफ यू प्लेस आयरन पार्टिकल, ओके, at some distance from the magnet, then it will attract। अगर आप कुछ डिस्टेंस पे भी रखते हैं तो भी वो क्या करेगा, मैग्नेट आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ओके स्टूडेंट्स। सो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उस एरिया तक मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वो एरिया, तो वो स्पेस जो है उसके आसपास का, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, कौन से लेटर से डिनोट करेंगे, B से। क्या डेफिनेशन मैंने बताई, द स्पेस around the magnet where magnetic force is exerted, where the magnetic force is exerted is called magnetic field, right? Now try to understand what is the SI unit of magnetic field, okay। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। व्हाट इज SI यूनिट, टेस्ला, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। स्टूडेंट, द साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, और निकोला टेस्ला वाज ग्रेट साइंटिस्ट, इनफैक्ट उसको वो क्रेडिट नहीं मिला जो उसको वो मिलना चाहिए था, ओके, ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पर हम 10th क्लास में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ला का गिवन है, और उसकी यूनिट जो है वो टेस्ला हो जाती है। टेस्ला वाज सो मच आई मीन सो ग्रेट साइंटिस्ट कि उस एरा में 1500 1600 वाले एरा में उसने रेडिएशंस के बारे में प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर जो है हमारा रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, हम रेडिएशंस से ही वर्क करेंगे। और नाउअडेज हम जो है मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, दिस ऑल वर्क्स ऑन रेडिएशन, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंट पर्सन वो होगा, कभी हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, ओके। Then SI unit is Tesla, but Tesla is very bigger unit. So smaller unit of magnetic field is Gauss. What is the smaller unit? Gauss, G-A-U-S-S, denoted by G. In fact, 1 Tesla is equals to 10 to the power 4 Gauss. So we can say Tesla is very bigger unit. ठीक है बच्चों, ये तो हुआ क्या हमने कॉन्सेप्ट समझा, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टडी करते हैं, क्या है बच्चों, आपको भी जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, लिखते रहना है बीच बीच में, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करते हुए लिख देंगे, बट लिखना जरूरी है। Magnetic field lines are the lines which are drawn in magnetic field where at each point a hypothetical north pole is generated and which exerts a force. So we can say these are the lines drawn in magnetic field जहां पर हर पॉइंट पे एक hypothetical north pole जनरेट होगा और वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे उस चीज को भी हम समझाएंगे। For this purpose we will take a cardboard, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझिए, एंड विल प्लेस अ बार मैग्नेट, है ना, इनसाइड, ओके, अंदर की तरफ क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट प्लेस करेंगे, एंड वी विल स्प्रिंकल दी आयरन पार्टिकल्स, आयरन फीलिंग्स, ठीक है ना, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, है ना। पहले तो वो पूरा बिखर जाएगा, बट विद इन 1 मिनट वी विल फाइंड दैट, 1 मिनट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा कि आयरन पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। एक सर्कुलर, क्लोज सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको प्रैक्टिकली करने जाएं, लाइन ड्रॉ करें,
तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिलेंगी। लेट्स सी कैसे लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट विल टेक कार्डबोर्ड एंड विल प्लेस अ व्हाइट पेपर ऑन इट। कार्डबोर्ड ले, उसके ऊपर व्हाइट पेपर रखें और वहां पर एक बार मैग्नेट को हम प्लेस करेंगे जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। उसके पास में हम कंपास रखते हैं। वी ऑल नो दैट कंपास है ना, मैग्नेटिक नीडल है कवर्ड इन ब्रास और एल्यूमिनियम बॉक्स हैविंग ग्लास टॉप। ओके, ब्रास को जब हमने रखा इसमें तो ये कंपास को जब हमने रखा, इट इज काइंड ऑफ कंपास, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है, दैट पॉइंटर शो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। पॉइंटर क्या शो करेगा, कंपास या मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। कंपास में तो मैग्नेट ही है, ठीक है। और जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो क्या शो करेगा, इट विल शो साउथ पोल। ओके, तो हमने इस कंपास को इस बार मैग्नेट के पास में रखा, देन ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अभी क्या करेगा, कंपास के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। कंपास का नॉर्थ पोल रिपेल हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, और जहां पर ये पॉइंटर गया नॉर्थ पोल, वहां पे हम क्या करेंगे, पेंसिल से डॉट मार्क करेंगे। अब कंपास को वापस उठाएंगे और जहां पे हमने डॉट रखा है वहां पे रखेंगे, तो वहां पे एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ पोल तो दूर हो गया है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर हो गया, बट एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जनरेट होगा और फिर फोर्स एक्सर्ट होगा। अगेन कंपास इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जहां पॉइंटर गया वहां पे फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर वहां पे रखेंगे कंपास। इस तरीके से लगातार कंपास को हम रखते जाएंगे, डॉट लगाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फाइनली हम ये देखेंगे कि यहां तक आते आते ये जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। साउथ पोल के डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम नीचे भी करेंगे और कंपास को थोड़ा सा मूव करवाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। So after doing this, we will find that closed circular line arrangement, and this is called magnetic field lines. So in this concept we have discussed how to draw magnetic field lines. Okay students, this is north pole, this is south pole, and magnetic field lines will form like this. We can say closed circular lines are there. Clear? Now there are some characteristics of magnetic field line. What are the characteristics of magnetic field lines? The first characteristic is the direction of magnetic field line is from north pole to south pole outside the magnet. ध्यान रखेंगे, magnetic field line की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, outside the magnet. So I have given you an arrow sign outside the magnet from north to south pole. There. And what about inside? Inside the magnet, the direction of magnetic field line is from south pole to north pole, opposite from the outside. हमेशा ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कहां से, नॉर्थ पोल से, और कहां तक जाएगा, साउथ पोल तक। ठीक है बच्चों, और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कहां से, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। हियर सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड characteristics of magnetic field lines is magnetic field lines are closer near the poles. आप देख सकते हैं कि magnetic field lines poles के बहुत पास हैं and they are far apart at the center. जैसे जैसे पोल से दूर होता जाएगा magnetic field lines क्या होती जाएंगी, जो है गैपिंग में आती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। There फिर साउथ पोल में देखें magnetic field lines पास हैं, so we can say magnetic field lines are closer near the poles. So मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो सबसे ज्यादा कहां होगा, इट इज हाईएस्ट एट द पोल्स। कोई भी आयरन पार्टिकल, निकल या क्रोमियम पार्टिकल अगर आप मैग्नेट के पास रखते हैं, सो इट विल फर्स्ट अट्रैक्ट टू द पोल्स, नॉट एट द सेंटर। बात सबको समझ में आ रही है क्या मैं बता रहा हूं, कि वो पोल्स पे सबसे पहले अट्रैक्ट होगा, सेंटर पे अट्रैक्ट कम होगा या बाद में होगा, क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेट फील्ड मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहां है, पोल्स पर है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट इज two magnetic field lines will never intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल दिस, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। If two magnetic field lines will intersect each other, that means at the point of intersection, जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, there is magnetic force in two direction। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स दो डायरेक्शन में है, इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, which is not possible। मैग्नेटिक फोर्स जो है हमेशा किसी
एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो अगर आपने यहाँ पे कंपास रखा तो वो इधर भी मूव करेगा और इधर भी मूव करेगा, which is not possible. So two magnetic field lines will never intersect each other. ठीक है बच्चों, so these are the three main characteristics of magnetic field lines, right? अब इसमें एक बात और समझनी है आपको, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आपको समझाई थी। व्हाट इज दैट? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय लेटर B, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत अच्छे से समझिए, क्या मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वेक्टर? वेक्टर दैट मीन which has both magnitude as well as direction, जिसमें magnitude भी है और साथ में direction भी है। So magnetic field lines अभी हमने बता दिया, direction north to south outside the magnet and from south to north inside the magnet. So magnetic field lines are vector quantity. Okay, then हमने magnetic field lines को डिस्कस कर लिया, then how to draw it, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अच्छे से इसको आप रिवाइज करेंगे और इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।